In last class, we have completed about DNA and types of what are the constituent of DNA, nitrogenous bases, and what are the different things we have completed. Yes or no? Yes, sir. So, as the structure of RNA, each fundamentally, or we can say basically, on the basis of their skeleton, they are same. But there is some minor difference, and the difference is they have ribose sugar. As we know, as we have read earlier, that we have two types of pentose sugar. One is ribose, one is deoxyribose. So deoxyribose is only present in DNA, and ribose is present in RNA. We have uracil in place of thymine, means it is U and it is T. And RNA in general, RNA is made up of only one type of polynucleotide chain. So we can say RNA is single stranded. That's why I have written ssRNA. In short, we can say we can write it as double S RNA. Clear है क्या? Hello. Hello. हाँ सर. आवाज आ रही है ना? हाँ सर. हाँ सर. So RNA is made up of only one polynucleotide chain. So it is single stranded RNA. Clear इतना क्या? Yes, sir. हाँ सर. सर लिखा नहीं, 1 मिनट. And the board students are integrated students. Get ready for the long term classes from Monday. समझा क्या? बोर्ड वाले मंडे से तैयार हो जाओ. हाँ बेटा. सर मतलब क्या शेड्यूल 2 रहेगा? घंटा 2 आवर 3 आवर जितना हो सकता है. ठीक है क्या? हाँ सर. इतना लिख लिया आप लोगों ने क्या? नहीं सर. जैसा मैंने आपको लिखा है एज इट इज आपको पता होना चाहिए. अब फंडामेंटली सेम का मतलब क्या है कि उनके पास भी नाइट्रोजनस बेस होगा, उनके पास भी पेंटोस शुगर होंगे, और दे हैव आल्सो फॉस्फेट ग्रुप. But the minor difference is having ribose in place of deoxyribose and have uracil in place of thymine. Clear है? And RNA is only one polynucleotide chain. It means it is single stranded. लिख लिया आप लोगों ने क्या? Have you completed? Yes, sir. Should I proceed? So, but in RNA, in reovirus, it is a different kind of virus. It has double stranded. RNA is double stranded. समझ में आ रहा है क्या? It means it has 2 polynucleotide chains. Awesome. This one is one polynucleotide. This one is second polynucleotide, which is anti-parallel. Somewhat इस तरीके से joined होंगे, तो क्या हो जाएगा ये? Double stranded. Clear है क्या? सर ये यहाँ पे वापस लिखा. समझाओ. हाँ बेटा. सर वापस समझाओ. ऐसा आरएनए जो कि सिंस वायरस होता है, इन जनरल वायरस के पास आरएनए हुआ करता है. इन जनरल वायरस के पास आरएनए हुआ करता है. एंड एज वी नो वायरस आर either living or non living
not non-living. Whenever they come to the host, they are living. Outside the host, they are non-living. It means this RNA is not so stable that it can exist independently. समझ में आ रहा है क्या? तो जो ऐसा RNA जो कि रियो वायरस में पाया जाता है, रियो एक वायरस का नाम है, जिनके पास डबल स्टैंडर्ड RNA होता है, we can write it as डबल स्टैंडर्ड RNA. समझ में आ रहा है क्या? D for double, S for standard. अब तक आपको मालूम हो जाना चाहिए कि डबल स्टैंडर्ड DS का मतलब क्या है. समझा क्या? हाँ सर. In next, the virus which affects plant or the virus which can affect or which can infect the plant, those RNA are single stranded. समझ में आ रहा है क्या? ऐसे RNA कैसा होते हैं? They are single stranded RNA. ये सवाल पूछा गया है. ऐसे वायरस जो कि एनिमल्स को अफेक्ट करते हैं, they may be double stranded or single stranded RNA. समझा क्या? हेलो, कंफर्म है क्या? और इट में भी हाँ सर. जो अपने पास एनिमल वाला केस है, ऐसा वायरस जो कि एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, दे में आल्सो हैव डबल स्टैंडर्ड डीएनए. समझ गए क्या? एंड इन बैक्टीरियल फेज वी हैव डबल स्टैंडर्ड डीएनए. समझा कि नहीं यार? हाँ सर. एक लास्ट पॉइंट इसमें अलग से आप लोग लिख लो. जो हम लोगों ने डीएनए के बारे में पढ़ा था ना, डीएनए दे हैव व्हाट वी कैन से, जो एक कॉइल का जो लेंथ थी वो कितनी थी? 3.4 नैनोमीटर. और ईच जो स्टेट का जो अपना विड्थ था कितना था? 0.34 नैनोमीटर. हाँ. और वी कैन से इट इज 3.4 एंगस्ट्रॉन and here it is 34 angstrom. This type of DNA is called as bDNA. कैसा बोलते हैं? bDNA. It means biological DNA. Biological DNA. समझ में आ रहा है क्या? This B doesn't mean for many things, but on the basis of discovery, it has named B. Clear क्या? We may have a different kinds of DNA, bDNA, cDNA, लेकिन जो हम लोग जिसके बारे में पढ़े हैं that is the bDNA. और इसका डिटेल से आप लोग कॉलेज वगैरह में आप लोग को पढ़ाया जाएगा. ठीक है ना? हाँ सर. क्लियर है? सर. Having these features, this kind of length, this kind of weight, this kind of the DNA having these features, that DNA is known as bDNA, means biological DNA. Here it is bracket, not C. समझा क्या? सर. हाँ जी. सर आपने लास्ट क्लास वो 5174 बैक्टीरियोफेज का तो सिंगल स्ट्रैंडेड बताया था ना, और जनरल में बैक्टीरियोफेज डबल स्ट्रैंडेड होता है मतलब. हाँ बेटा. आपको आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है. तो आपने लास्ट क्लास 5174 वाला जो बैक्टीरियोफेज था उसका आपने सिंगल स्ट्रैंडेड बताया था ना. हाँ तो हम लोग को उस देखो बैक्टीरिया फेज क्या ऐसा बैक्टीरिया है जो वायरस इन्फेक्ट करता है. हाँ. we may have different bacteriophage, like we have named 5x174. This bacteriophage has single and circular DNA. Single and circular DNA, that is the 5x174. ये बैक्टीरियोफेज का नाम है. क्लियर है क्या? हाँ सर. लेकिन इन जनरल क्या ये वाला होता है अपने पास. हाँ समझा. समझ रहे हो क्या? हाँ सर समझा. आप लोग के पास एनसीईआरटी है क्या? हाँ सर है. बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन पेज नंबर 26 निकालना आप लोग.
निकाला सर। यस सर। आप लोगों को दिख रहा है क्या? अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी तो उसको छोड़ के आप जो मैं दिखा रहा हूँ देखो, दिस इज द करंट एनसीईआरटी फॉर 2020 टू 21, ठीक है? नीचे आपको दिख रहा होगा शायद। दिख रहा है क्या? हाँ सर। Bacterial virus or bacteriophage, the virus that infects bacteria are usually double stranded. समझ में आ रहा है क्या? अगर वहां पे मैं मेंशन कर दिया 5 into 174, उनके पास क्या होता है? सिंगल बोलो। स्टैंडर्ड। हाँ बेटा, सिंगल स्टैंडर्ड। सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। सर्कुलर लेकिन यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? डबल स्टैंडर्ड डीएनए, जो कि इन नॉर्मल बैक्टीरियोफेज की बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? ये वाला हाँ सर। बैक्टीरियोफेज के पास क्या होता है? सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है। मतलब ऑब्वियसली सिंगल है तो सिंगल स्टैंडर्ड होगा। समझ में आया कि नहीं यार? समझा सर। इतना आप लोगों ने लिख लिया क्या? हो गया सर। सबका हो गया? हाँ सर। हो गया तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, प्रोटीन। सर हेलो सर, आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो। हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। सर बायोमोलिक्यूल्स के लिए और कितने लेक्चर्स लगेंगे? 2-3 लगेगा, 1-2। प्रोटीन आज खत्म करते हैं हम लोग। ठीक है सर। टाइम कितना लगेगा मत देखो आप लोग, क्या कंटेंट मिल रहा है वो देखो, ठीक है? नहीं सर, वो समझा क्या? मैंने बोला था ना, वो पेजेस स्किप करने थे, तो आपने बोला था 2-3 लेक्चर्स तक के कर देना स्किप, तो कम बच्चे इसलिए पूछा। हाँ बेटा कुछ नहीं सर, वो क्या बोल रहे हो? पेजेस के लिए। हेलो सर। अच्छा, पेजेस छोड़ने के लिए बात कर। प्रोटीन्स किस कैटेगरी के बायोमोलिक्यूल्स में आएगा? माइक्रोमोलिक्यूल। हाँ बेटा, तो they माइक्रोमोलिक्यूल। comes in the category of macromolecule. माइक्रोमोलिक्यूल। वाओ, ये कौन 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 बोल रही है? और रितिका। बेटा गलत बात है नहीं ये। आपने कैसे कह दिया माइक्रोमोलिक्यूल? सर हेलो, रिटेन टेट में आता है तो मैक्रो। मतलब आप लोग रिवाइज नहीं करते हो क्या? ये तो मुझे कंफर्म हो गया आप लोग रिवाइज नहीं करते हो। बेटा देखो, रिवाइज नहीं करोगे ना तो फिर मैं फिर कुछ नहीं कर सकता हूँ। हेलो। हेलो। हाँ सर।
रितिका बेटा, आप लोग अगर रिवाइज नहीं करते हो फिर मैं आपको कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैंने आप लोगों से कहा कि रिवाइज करते रहा करो, करते रहा करो। नहीं सॉरी सर, वो मैक्रोमोलेक्यूल में आएगा। बेसिकली इट इज मैं लिपिड्स का मैक्रोमोलिक्यूल सोच सिंस रही इट थी। फॉर्म, हाँ इट इज नॉट लिपिड्स, इट इज प्रोटीन। अब ठीक है, बेसिकली इट इज द प्रोटीन्स आर द हेट्रोपोलिमर। समझ में आ रहा है क्या? डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ हेटेरोपोलिमर। इतना क्लियर है क्या? Depends on the structure, we have different kinds of protein. So we have on the basis of structure, we have primary protein, means primary structure वाला protein. We have secondary structure. क्लियर है क्या? And in protein we have essential elements. कौन कौन से आते हैं, कोई बताएगा मुझे? अमाइनो एसिड। Essential elements. Essential elements in protein कौन कौन आएगा बताओ? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। सही है क्या? जो हम लोगों ने पढ़ा था कि न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फेट होगा, वहीं पर प्रोटीन्स में क्या होते हैं, सल्फर होते हैं। मोस्ट ऑफ प्रोटीन्स हैव सल्फर। समझ में आ रहा है क्या? तो इसी बिना पर जब जेनेटिक मटेरियल को डिस्कवरी किया जा रहा था, उसका कंफर्मेशन किया था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या आरएनए है, तो सल्फर बेस्ड पे इनको टेस्ट किया जा रहा था। समझ में आ रहा है क्या? हेलो, हाँ सर। some proteins may have iodine, it may be iron, it may be phosphorus, लेकिन इन जनरल क्या होता है, सल्फर होता है। And proteins are polymers of amino acid. Proteins are polymers of amino acid in which amino acids are linked by peptide bond to form polymer. समझ में आ रहा है क्या? हेलो, हाँ सर। हाँ सर। and on the basis of essentiality we have two kinds of what we can say amino acids, essential और non essential. essential non essential क्या होता है आप लोगों को पता है, स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं, सिर्फ अपने को टाइप्स ऑफ प्रोटीन पढ़ना है। on the basis of different structure we have alcoholic amino acids, we have heterocyclic amino acids, we have aromatic amino acid, we have acidic, we have basic, we have neutral. क्लियर है क्या? हाँ सर। इतना लिख लिया आप लोगों ने क्या? हाँ सर। फिर नेक्स्ट आउट configuration of protein molecule. So write down the first one. It is the primary structure. So that's why then it will call as primary protein. Primary configuration और primary structure. समझ में आ रहा है क्या? फिर वो सर्म प्रोटीन्स में क्या था बताएंगे क्या, आयोडीन के बाद और फास्फोरस के अलावा? हाँ बेटा, हाँ आयोडीन, सर। आयरन, फास्फोरस। इन जनरल आपको ध्यान ये रखना है कि उस प्रोटीन में सल्फर होते हैं। ये मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया कैसा हो सकता है कि ये भी प्रेजेंट हो, ये भी प्रेजेंट हो, ठीक है ना? समझा क्या?
Yes, sir. सो इन प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होगा, जैसे अमीनो एसिड्स है ना, दे आर लीनियरली लिंक्ड होंगे एक दूसरे से। क्लियर है क्या? इस तरीके से ये एक लीनियर चेन बनाएगा। तो इस तरह के स्ट्रक्चर क्या बोलेंगे हम लोग? प्राइमरी स्ट्रक्चर और प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन। समझा क्या? बोलो यार, कौन सा हाँ सर। पहला, कौन सा पहला है, कौन सा दूसरा है? इसी बिहाफ पर वी हैव different kinds of protein. Clear है क्या? So we can define it as the positional information of amino acids in protein और इस तरीके से ये लिंक्ड होगा कि विच इज फर्स्ट एंड विच इज सेकेंड। समझ में आया क्या? एंड सो ऑन। इस तरीके से जब अरेंज होगा, ऐसे को क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर को सो कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर। समझ में आया क्या? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। And proteins are polypeptides, linear chain of amino acid linked by peptide bond. Proteins are polypeptides, linear chain of amino acid linked by peptide bond. And so we have 20 types of amino acids. Clear है क्या? इसमें से कुछ एसेंशियल होते हैं, कुछ नॉन एसेंशियल होते हैं। And in this पोजिशनल बेसिस पे फर्स्ट एमिनो एसिड और दैट इज एंड लेफ्ट एट लेफ्ट एंड दैट वी कॉल एज एन टर्मिनल एमिनो एसिड। समझ में आया क्या? ये सवाल पूछा गया है, एन टर्मिनल में कौन सा आता है, फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, कौन सा आता है? समझा क्या? प्राइमरी स्ट्रक्चर का मुझे डेफिनेशन नहीं समझा। जैसे मैं दिस वन इज द फ्रॉम लेफ्ट साइड, दिस इज द राइट साइड, दिस इज द फर्स्ट वन, दिस सेकंड वन, थर्ड वन, दिस इज द लास्ट वन। इस तरह के तो बहुत सारा प्रोटीन एसिड जब लिंक करेगा पॉलीपेप्टाइड पेप्टाइड बॉन्ड से, तो पोजीशन के बेस पे ये पहला हो गया, दिस इज द लास्ट। तो दिस एंड वी कॉल एज एंड, मतलब कि इसी तरीके का सीक्वेंस का अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये सिर्फ लीनियर होगा और ऐसा स्ट्रक्चर बहुत कम होता है। हाँ सर, समझा क्या? समझा। हाँ, तो दिस एंड इज नोन एज एन टर्मिनल। फर्स्ट एमिनो एसिड और लेफ्ट एंड, द एमिनो एसिड व्हिच इज प्रेजेंट एट द लेफ्ट एंड दैट वी कॉल एज एन टर्मिनल एमिनो एसिड। समझा कि नहीं? हाँ सर, आगे बढ़ूं? ऐसा एक मिनट लिख रहा। लिखा नहीं सर। एंड वी हैव right end
और लास्ट, that we call as C terminal. समझा क्या? हाँ सर समझ गया। Should I proceed? Yes sir. No, sir, 1 minute. Backbone of genetic material or nucleotides is formed from which components? Sugar phosphate. Sugar and phosphate. किसी बच्चे को डाउट था कि सर क्रिस्टलोग्राफी जो डिफ्रैक्शन डेटा था वो किसने डिस्कवर किया था? बताओ यार। Sir, Wilson क्रिस्टलोग्राफी डिफ्रैक्शन डेटा वाज डिस्कवर्ड बाय Sir, Wilson and Franklin. सबको पता है ना? सर मेरी आवाज आ रही क्या? आ रही है बेटा। ठीक है सर। तो हम राइट हैंड वाले को सी टर्मिनल क्यों नेम देते हैं? ऐसा क्यों कहते हैं? हाँ सर। बेसिकली इसका कुछ वो मतलब कोई वो नहीं है, रीजन नहीं कि ऐसा क्यों कहते हैं। जब साइंटिस्ट इसको मतलब वो कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्कवरी, और जैसे इसको मालूम चल गया तो कुछ इस तरीके से उसका नाम दिया। कुछ है एन फॉर समथिंग, कुछ मेंशन नहीं है। क्लियर है क्या? हाँ सर, ठीक है। और इस तरीके का गया। जो स्ट्रक्चर ऐसा पढ़ते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है, एक हाइपोथेटिकल है। Basically, N and C refers to the two terminal of every protein. First one is N and last one is C. Clear है? बोलो यार। और इसका ये एक सीक्वेंस, एक वजह हम लोग ये भी जान सकते हैं कि जब हम लोग अच्छा आगे बढ़े क्या, फिर आपको आगे बताते हैं क्या होता है। Should I proceed? यस सर। हाँ सर। एक आपको स्ट्रक्चर बनाना है। शायद मालूम चलेगा कि वहां पे हम लोग एन क्यू लिखते हैं। मालूम चला कि नहीं? हेलो, आप लोगों को मालूम चला कि नहीं? क्या सर? हेलो, मालूम चला कि नहीं एन क्यू लिखते हैं? स्ट्रक्चर पे देखो आप लोग। हाँ सर, समझ।
लास्ट में क्या है, CH2COOH। क्लियर है क्या? बेसिकली कुछ नहीं, ये कुछ लीनियरली लिंक इस टाइप से होता है। दिस इज द N terminal, this is the C terminal. For example, we can say this portion has been zoomed out and इसके अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पे आपको दिखाया गया है। समझा क्या? और हर एमिनो एसिड्स को वी एब्रीवेट एज 3 लेटर। समझा क्या? हेलो, each amino acid is abbreviated as 3 letter। ग्लूटामिक एसिड this one is serine, this one is cysteine, this one is tyrosine, this one is glutamic acid। क्लियर है क्या? तो आपको कहीं दिख रहा है, कहीं इसका कॉइलिंग कहीं आपको दिख रहा है? ये सिंपली एक लीनियर चेन वाला एमिनो एसिड है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज प्राइमरी स्ट्रक्चर और प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन। बोलो यार। और नीचे आपने वो क्या लिखा है, N-2 N-1? अच्छा, ये रह गया था ना, मैं बता रहा हूँ। बेसिकली इफ आई कंसीडर इसका इट्स पोजीशन इज n, देन दिस वन विल n+2 इसके पहले, क्योंकि सिंस वी ट्रेवल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड। समझ में आ रहा है क्या? तो इफ दिस इज n, दिस वन इज n+1। इफ आई कंसीडर दिस वन इज n, देन इट विल बी n+1, दिस विल बी n+2। समझा क्या? हाँ समझा। इफ इट इज n, दिस हाँ, n समझा। -1, पोजीशन कितना हो गया? n-2। इफ आई कंसीडर, इसमें बहुत सारे अमीनो एसिड है, n कितना है? मान लो 10। n कितना है? 10। तो दिस वन इज कितना को बताओ? 8, दिस वन इज 7, दिस वन इज 9। समझ में आ रहा है क्या?
तो मतलब आपने रैंडमली ऐसे सिलेक्ट किया है ना कोई भी अमाइनो एसिड? ये मैं अपने अपने को क्या की अपने यहाँ पे ये किया है, कोई भी एक प्रोटीन किया उसका एक चेन लिया मैंने, एक चेन को मैंने उसके बीच से काट करके यहाँ पे आपको मैं दिखाया है। ये तो पूरा पूरा दिख रहा है ना, ये बहुत बड़ा प्रोटीन का चेन है, हमने सिर्फ इस पोर्शन को काट के यहाँ पे लगाया है। समझा क्या? इधर भी तो बहुत सारे अमीनो एसिड होंगे, दिस साइड भी वी हैव आल्सो अ लार्ज नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द मिडिल पोर्शन अमीनो एसिड्स। क्लियर है? हाँ सर। रितिका बेटा क्लियर है? हाँ सर। थोड़ा लिखने वाला काम लोग जल्दी करो। हो गया क्या? आप लोग इतना स्लो चैप्टर खत्म कर सको बेटा? लिख लिया। एक थोड़ा मिनट सर। पेन, थोड़ा हाथ फास्ट चलाओ। अच्छा, आप में से कोई मुझे ये बता सकता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोटीन? बॉडी बिल्डिंग। हाँ बेटा, हेल्प इन द ग्रोथ। और रिपेयर। आगे बढ़ो क्या? तो बस वो लास्ट का लिखना है, एक मिनट। Yes. राइट डाउन द नेक्स्ट फंक्शन हम लोग बाद में बात करेंगे लास्ट में। अच्छा, हम लोगों ने ये कुछ पॉइंट लिखे हैं ना, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन लिखा है। यूनिवर्स, सारा लिख लिया ना हम लोगों ने? चलो सही। नेक्स्ट लिखो सेकेंडरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर, or we can say configuration. It is in the form of it is in the form of helix, और जो हेलिक्स ये बनाएगा somewhat it is right handed। कैसा होगा ये? somewhat, जो हम लोग इससे पहले पढ़ा तो वो कुछ लीनियर पे था, लेकिन ये वाला कैसा कैसा होगा? कुछ इस टाइप का होगा। समझा क्या? दिस इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो इसमें आप पॉइंट लिखो, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स मतलब क्या? एमिनो एसिड्स। They are spirally coiled. Have peptide bond ये तो सारे प्रोटीन्स में पेप्टाइड बॉन्ड तो होंगे ही होंगे,
लेकिन इसमें खास बात क्या होती है कि और दे हैव हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड between oxygen of one amide and hydrogen of another amide bond। क्लियर है क्या? दे आर insoluble in water। सेकेंडरी स्ट्रक्चर insoluble होता है, insoluble in water and fibrous in appearance। fibrous in appearance। हो गया क्या? तो प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस क्या है मतलब? बेटा वो लीनियरली वो लिंक्ड थे, ये हेलिकल हेलिकल का आपको लग रहा हो कि दोनों सेम है, लेकिन दोनों सेम नहीं है। तो उसमें भी स्पाइरल ही था ना सीधा? हाँ बेटा, तो उसमें भी क्या बोल रहा स्पाइरल था ना? इस बेसिकली हम लोग उसको इस टाइप से बनाया गया था। आपको मैं बताऊं कि जो उसका स्ट्रक्चर था वो कैसा था अपने पास, लीनियर था। लीनियर, वो कुछ इस टाइप का था ना अपने पास। हाँ आपको सर दोनों ऐसे में कोई डिफरेंस दिख रहा है क्या? हाँ ये वर्टिकल है वो हॉरिजॉन्टल है। हेलो हेलो। हाँ सर। और नाउ आई एम सेइंग दैट दिस इज द राइट हैंडेड। समझ में आ रहा है क्या कुछ? हाँ सर राइट हैंड। हेलो हाँ बेटा, ये वाला कुछ इस टाइप से है ना, हाँ हाँ समझा। और ये वाला क्या है? तो इस तरीके का हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। ये वाला राइट हैंडेड नहीं है, नहीं समझा क्या? समझा सर। हेलो। हाँ सर समझा। लेकिन दोनों में जो मेन डिफरेंस क्या है कि इसमें क्वाइलिंग ज्यादा होती है, ये वाले में क्वाइलिंग कम होती है।
अगर हम लोग फिर टर्शियरी की बात करेंगे तो टर्शियरी में क्या होगा, ये जो कॉइलिंग है सेकेंडरी में और थोड़ा कॉइलिंग हो जाएगी। समझा क्या? हाँ सर, या समझ में नहीं आया? समझा सर, समझा। सर ये डिफरेंस वापस बताओ, हाँ बेटा, सर डिफरेंस वापस बताइए एक बार। डिफरेंस ये है कि हम लोगों ने वहां पे सिर्फ इस तरीके से हम लोग पढ़ा, ये था और ये हाँ। कुछ इस टाइप से था, इनकी कॉइलिंग कम थी। और ये जो स्ट्रक्चर है ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, ये एक हाइपोथेटिकल है, हम लोग समझने के लिए बनाते हैं। और इसका परसेंटेज काफी कम होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर का, क्योंकि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कन्फ्यूजन पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को प्राइमरी पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? इसमें क्या होता है कि ये कुछ इस तरीके से फोल्डेड होते हैं, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। क्या हम लोगों ने पिछले वाले में हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ा? हाँ। नहीं, इससे पहले वाले नहीं में हाइड्रोजन बॉन्ड था क्या? नहीं था नहीं ना? सर, उस पे नहीं था। हाँ। और उसमें अच्छा एक पॉइंट आपने उसमें लिखा आप लोगों ने क्या? इसमें आप एक पॉइंट और ऐड कर लो, इट इज द मोस्ट अनस्टेबल, दिस स्ट्रक्चर इज मोस्ट अनस्टेबल, इसलिए इसका एग्जिस्टेंस बहुत कम होता है या नहीं के बराबर होता है। ये प्राइमरी में ये वाला आप पॉइंट लिख लो, दिस इज मोस्ट अनस्टेबल। जब अनस्टेबल है तो फिर इसके बारे में हम लोग बात करने से कोई फायदा है नहीं। अब होता क्या है, जब प्रोटीन बन रहा होता है ना तो ये पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर बनता है, फिर ये जगह कॉइलिंग होती है उसकी। आपको मैं एक एनिमेशन दिखाऊंगा प्रोटीन कैसे बनता है। पहले हम लोग ये पूरा कंप्लीट कर लें प्रोटीन के बारे में, फिर मैं आपको एनिमेशन दिखाऊंगा किस तरीके से राइबोसोम्स आते हैं, एमिनो एसिड्स आते हैं और वो फिर बनाता है। समझा क्या? Since this structure is unstable, that's why the primary structure which is formed first during translation means protein synthesis, it converts into secondary structure, and that secondary structure converts into next tertiary structure. Then finally that कुछ इसमें क्या होता है, कुछ tertiary structure होता है और कहीं पर क्या होता है, then finally they formed a structure that we call as quaternary structure. जैसे क्वाटरनरी प्रोटीन में आता है अपने पास हेमोग्लोबिन। समझे कि नहीं यार? समझा। इसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती है, प्राइमरी में कम होती है या नहीं के बराबर होती है, क्योंकि जो प्रोटीन बनना शुरू होता है तो उसे एक एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड से लिंक्ड होते हैं, इसके अलावा उसमें कुछ नहीं होता है। इसमें क्वाइलिंग बढ़ जाती है सेकेंडरी में, टर्शियरी में और ओवर क्वाइलिंग हो जाती है, मतलब क्वाइल थ्रेड है ही और आप अपने आप में भी कुछ उसमें क्वाइलिंग हो गई। समझा क्या? ये आप लोग लिख ले क्या? हेलो, हाँ सर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर अपने पास दो टाइप का होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर अपने पास दो टाइप का होता है, एक होता है अल्फा हेलिक्स, दूसरा होता है बीटा हेलिक्स, और वी कैन से बीटा प्लीटेड सी स्ट्रक्चर। सिर्फ आपको नाम जानना है और कुछ नहीं जानना है। और जो अल्फा वाला होता है इसमें आपको लिखना कुछ जैसे जानना है कि इट इज राइट हैंडेड रोटेशन ऑफ स्पाइरली क्वाइल्ड ऑफ 3.5 एमिनो एसिड। जो उसका एवरेज एमिनो एसिड पर क्वाइलिंग में आएगा वो कितना आएगा, 3.5 ईच एंड एवरी टर्न। समझ में आ रहा है क्या? और इसमें आपस में क्या होती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, जो हम लोग कुछ देर पहले पढ़ा। क्लियर है क्या? इसका एग्जांपल होता है अपने पास क्रिएटिन, वी हैव मायोसिन जो कि अपने मसल्स में पढ़ा होगा या मसल्स में आप लोग पढ़ेंगे, वी हैव ट्रोपोमायोसिन, ये भी आप लोग पढ़ेंगे कहां पर, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में, ट्रोपोमायोसिन। समझा क्या?
and this keratin is very hard, it is tough, and it is too much resistance towards digestion, मतलब ये उतना easily digest होता नहीं है। और इनके पास जो हार्डनेस होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एमिनो एसिड दैट इज सिस्टीन। बाद बाकी ये सब आप लोग हायर क्लास में पढ़ोगे डिटेल्स से क्या क्या कैसे कैसे होती है। जहां जहां पर केराटिन का डिपोजिशन होगा ना वो वाला पार्ट हार्ड होंगे, ठीक है, और वो कुछ नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेगा। समझ में आ रहा है क्या? हेलो, हेलो, हाँ सर। और बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर में क्या होता है? इट इज जिगजैग स्ट्रक्चर। आप ये टर्शियरी स्ट्रक्चर बता रहे हो अभी? बेटा सेकेंडरी का ये दो पार्ट हैं, अल्फा एंड बीटा। इस- इससे आगे आप लोगों को ये जानना है कि जिगजैग स्ट्रक्चर का आगे क्या होता है। जिगजैग मतलब पता ही आपको, जो उसमें था सेकेंडरी में उसमें ये जिगजैग होता है। और ये एक अल्फा हेलिक्स में वी हैव इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन इसमें क्या होता है बीटा हेलिक्स में, बीटा वाले शीट स्ट्रक्चर में वी हैव इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका एग्जांपल अपने पास एक प्रोटीन है अपने पास फाइब्रोइन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिल्क बोलते हैं। समझा क्या? नेक्स्ट थर्ड स्ट्रक्चर लिखो, दैट इज द टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर लिख लिया क्या आप लोगों ने? जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है कुछ वो इस तरीके से होता है अपने पास कि जो अपने पास सेकेंड स्ट्रक्चर था उसमें और अपने आप में क्वाइलिंग होती है। समझ में आ रहा है क्या? ध्यान से देखना मैं कैसे क्या बना रहा हूँ। तो बी पिक्चर में इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड है क्या? पहले वाले में क्या है अपने पास? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रा इंट्रा मतलब विद इन, और ये वाला में क्या होता है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटर मींस दो के बीच में। तो मैंने शुरू यहां से किया था, तो दिस वन इज द एंड टर्मिनल एंड दिस इज द फर्स्ट वन एंड दिस इज एट लेफ्ट साइड, दिस इज एट राइट साइड, दिस इज द सी टर्मिनल। क्लियर है क्या? सर ये बोलो यार। स्ट्रक्चर बनाना कैसे है? अच्छा नहीं बन पाया क्या? मतलब वो समझ में नहीं आ रहा कैसे बनाना है। नहीं नहीं, जो अपने पास अभी था ना ये वाला, अपने पास क्या था अभी? दिस वन, ये था क्या राइट हैंडेड वाला? हाँ अब ये क्या है? ये तो एक नॉर्मली अपना बना हुआ है। इसमें एक इसने क्या किया, मैं नेक्स्ट पेज में जा रहा हूँ। सिंपली ये ऐसे था लाइक दिस वन। अब ये क्या हुआ? आपस में भी फोल्डिंग हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब कि okay, बाहर होगा ये। आपने कभी वुलन बोल देखा है क्या? जैसे कि जो लोग वुलन का काम करते हैं, वुलन से स्वेटर वगैरह बुनते हैं, हाँ सर। तो किसी इसमें वो किस तरीके से रोल किया हुआ होता है? बोलो यार। तो ओवरलैप्ड होता है ना एक दूसरे के। हाँ हाँ, इस तरीके से क्लोजली लिंक्ड होता है ये। जैसे ये मैं दोबारा बना रहा हूं, देखो जैसे करें ये मैंने बनाया, ये कुछ फिक्स नहीं कि ऐसा ही होगा ये।
इसको एक बॉल शेप स्ट्रक्चर बनाना, वुलन बॉल शेप स्ट्रक्चर बनाना है। तो it will start from left side and end from end to right side. This is the N terminal, this is the C terminal. समझा क्या? हाँ तो ये आपके लिए स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है। इसमें कुछ देखना नहीं कि मैं सर जैसे बनाया वैसे मैं भी बनाऊंगा, आपको कॉइल होना चाहिए। This is the first and this is the last. R for right, L for left. Should I proceed? यस सर। आपने नाम सुना होगा ग्लोब्यूलर प्रोटीन, नाम सुना है क्या? हाँ सर। तो ये कुछ इस तरीके से ग्लोब्यूल बनाता है, मतलब कि एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाता है। दे आर सोल्यूबल इन वाटर। टर्शियरी स्ट्रक्चर कैसा होता है? सोल्यूबल इन वाटर। और एक कुछ कोलाइडल सॉल्यूशन बनाता है। इनके पास बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं। बॉन्ड्स में पहला होता है पेप्टाइड बॉन्ड, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है प्रोटीन्स में। समझ में आ रहा है क्या? वी हैव हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब प्रोटीन का स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। वी हैव डाइसल्फाइड बॉन्ड, वी हैव आयोनिक बॉन्ड। इन नेक्स्ट हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड कहां पर होगा? जहां पर अपोजिटली चार्ज साइड चेन होंगे उस पर, जैसे एस्पार्टिक एसिड है, लाइसिन है, तो इस तरीके से ये आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा। ठीक है, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इट गिव्स अ 3 डायमेंशनल व्यू। जिस तरीके से आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, 1D 2D लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, और पता नहीं रेक्टिलिनियर मोशन और ट्रांसलेशन मोशन पढ़ा आप लोगों ने। हाँ तो कुछ सेम समझ लो, यहाँ पे वहां पे भी 1D 2D है पढ़े आप लोगों ने। 1D में सिंपल एक लाइन पढ़े होगे, 2D में क्या पढ़ोगे? एक एक्सिस, एक वाई एक्सिस, और व्हाट वी कैन से इन 3D एक तीसरा एक्सिस जेड,
समझा क्या? और इन क्वाटरनरी क्या क्या पढ़े थे आप लोग, मतलब 4D में क्या पढ़े हैं? अच्छा 4D आप लोगों को नहीं पढ़ाएगी ना सर? 4D नहीं। नहीं, अच्छा 4D नहीं हुआ, लेकिन 4D अगर देखा जाए तो कुछ ये और मतलब कि इस तरीके से कि 4 डायमेंशनल व्यू अपने को दिखे। समझे कि नहीं यार? हाँ सर। लिख लिया क्या आप लोगों ने? 1 मिनट सर। हो गया सर। सबका हो गया? हम्म। इसका हम लोगों ने डेफिनेशन लिख लिया है। They are highly folded to give globular structure, or we may say also Willen bowl. ठीक है ना? Willen bowl. This tertiary structure is very important for biological process. सर आपने जो हाइड्रोफोबिक बॉन्ड लिखा है वो अलग से लिखा है ना? नहीं इसी में है बेटा, नीचे जगह नहीं देख लिया, यहाँ पे लिखा हूँ। हाँ ठीक है सर। It gives 3 dimensional view. Majority of protein and enzymes exhibit tertiary structure, which is absolutely necessary for biological activities.
This is the most stable protein. यार इसी स्टेबिलिटी बेस पे सवाल पूछा गया था। नहीं नहीं ये नहीं है, सेकेंडरी टर्शियरी। क्वाटरनरी प्रोटीन ही तो मोस्ट स्टेबल होता है। लेकिन इन मैक्सिमम में मैक्सिमम जो क्या होता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है। लिख लिया क्या आप लोगों ने? हेलो, लिख रहे से बेटा तक आपका टाइम कब तक है तनुश्री, सॉरी दीपिका? सर वो एक्चुअली 3:30 से शुरू होता है बट 3:45 तक चलेगा मुझे। चलो ठीक है, इतना हो गया आप लोगों का क्या? नेक्स्ट लिखो, हाँ सर। फोर्थ वन, क्वाटरनरी प्रोटीन। मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसकी खास बात ये है, आप लोगों ने इसको लिख लिया क्या, कि इट हैज 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ टर्शियरी स्ट्रक्चर। जो हम लोगों ने टर्शियरी स्ट्रक्चर पढ़ा, उसके 2 या 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, और वो कंबाइन करने के बाद एक डिफरेंट स्ट्रक्चर देता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। जिस तरीके से ये वाला हम लोगों ने पढ़ा ना, दिस वन, हेलो, हाँ सर। इस तरीके से बहुत सारा होता है। एक तो ये हो गया, अब ये बनने के बाद अब मान लो मैंने एक और बना लिया, एक इस तरह का बॉल हमने और बना दिया, एंड दिस इज लिंक्ड बाय दिस पॉइंट। समझा क्या? फिर क्या होगा, ये मिलकर के एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक और आएगा, एक और इस तरीके से बनेगा। तो चारों बाइंड करने के बाद एक अलग सा स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। जो कि जैसे अपने पास होता है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन क्या है, उनके पास 4 बाइंडिंग साइट होती है, ये इन्हीं के क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की वजह से होती है। समझ रहे हो क्या? तो उसमें इस तरीके से बहुत सारे यूनिट्स एक दूसरे से जुड़ते हैं। जिससे यहाँ पे था कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपस में क्वाइलिंग करने के बाद ये क्या बनाया, टर्शियरी बनवाया। इसी तरीके से बहुत सारा टर्शियरी स्ट्रक्चर मिलकर क्या बनाएगा, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाएगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। टू और मोर सर आपने क्वार्टरनरी के लिए क्या लिखा था, मोस्ट स्टेबल? मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये सवाल पूछा गया कि विच स्ट्रक्चर आउट ऑफ द 4 स्ट्रक्चर, उनमें से सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल कौन सा होता है। लेकिन सबसे ज्यादा पाया कौन सा आता है, टर्शियरी वाला।
लिख ले क्या? एक मिनट। हाँ सर, हो गया। Basically, it is linear string of sphere, and spheres are arranged on one upon in the form of cube. जैसे अपने पास एच बी था ना, एच बी में क्या होता है, जो कि एडल्ट ह्यूमन में जो हेमोग्लोबिन होता है, इनके पास 4 सब यूनिट होते हैं। क्या होते हैं? 4 सब यूनिट। इट हैज 2 अल्फा यूनिट, 2 बीटा यूनिट। समझ में आया क्या? हाँ सर। इतना लिखो, फिर मैं आपको एक एनिमेशन दिखा रहा हूँ। तो वो क्या लिखा है आपने, लीनियर स्ट्रिंग ऑफ स्फीयर? हाँ, लीनियर स्ट्रिंग ऑफ स्फीयर। जैसे कि एक स्फीयर हो गया, फिर वो कंबाइन करके दूसरे से कंबाइन करेगा, फिर तीसरा वाला उससे कंबाइन करेगा, मिलकर के एक क्वाड्रेटिक स्ट्रक्चर बनाएगा। आई होप कि कल खत्म हो जाएगा। कल एक या 2 और लगेगा। जहां तक मैं सोचता हूँ, आपको ये चैप्टर जो मैं पढ़ाया हूँ 9-10 लेक्चर में जो भी होगा, आपको बहुत जगह काम देगा। अगर अच्छे से पढ़ा है तो फिर कहीं पे इस तरह का डाउट नहीं आएगी। और मेरे ख्याल से इसमें कोई आप लोगों को कोई डाउट्स आता भी नहीं होगा, तो मैंने सारे के सारे डाउट्स को लेकर के मैंने आपको कंटेंट दिया है। इसके बावजूद भी डाउट्स आता है, यू आर मोस्ट वेलकम। हो गया क्या? 5 अच्छा। 5-6 मिनट का वीडियो आप देख लो। Process of translation occurs within every single cell. Each cell. दिख रहा है क्या? Protein synthesis, translation. हाँ सर। Inside the body, process of translation occurs within every single cell. Each cell has a nucleus. आवाज सुनाई दे रहा है? mRNAs move out of the nucleus and enter the हाँ cytoplasm. सर। This mRNA strand acts as a template for protein synthesis. Present in the ये आपको दिख रहा है यहाँ पर? हेलो, एको हो रहा है। एको हो रहा है। अब ठीक है? हेलो, तो जो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये वाला, हाँ। ये अपने न्यूक्लियस से निकलने के बाद इनके पास इंफॉर्मेशन होती है, और ये कोड करेगा। आप लोग फिर इसका डिटेल से 12th में पढ़ोगे। फिर ये जाके राइबोसोम में बाइंड करता है। ये आपको ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, फिर ये इससे बाइंड करेगा।
और अपने सेल के एनवायरनमेंट में बहुत सारे अमीनो एसिड्स हुआ करते हैं जो इसे बाइंड करके फिर क्या बनाता है, अपना प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन्स। Cytoplasm is an enzyme, amino acid tRNA synthetase. The enzyme macromolecule has two binding sites. One site recognizes the amino acid, the thymine. This is followed by binding of the ATP molecule and release of pyrophosphate, resulting in activation of amino acid. Finally, tRNA and the activated amino acids bind together. tRNA का मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए। This amino acylated मालूम है। tRNA is known as met-tRNA. MAT का मतलब है मिथायोनिन tRNA। The commencement of the first stage of protein synthesis, the initiation stage. During the initiation stage, a small subunit of ribosome binds to the mRNA strand. The mRNA strand is made up of codons, which are sequences of 3 bases. Then the ribosome subunit moves along the mRNA in 5' to 3' direction until it recognizes the AUG codon or the initiation codon. At this point, that tRNA आवाज नहीं आ रहा है। अभी आवाज नहीं आ रहा। At this stage, another tRNA carrying molecule of an amino acid approaches the mRNA ribosome complex and fits in the A site. Then a bond is formed between the thymine and the amino acid molecule on the tRNA. As a result, एको हो रहा है। it becomes deacylated. अब The ठीक है। ribosome then advances a distance of 1 codon and the Yes, sir. deacylated RNA shifts to the E अभी नहीं आ site रहा? from where it dissociates. Meanwhile, another tRNA carrying amino acid molecule हो रहा है attaches तो। अभी वैसे मैं आपको लिंक भेज दूंगा, ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। आपको मैं बताया था ना कि एक साइड से एमिनो एसिड्स आएगा, जैसे ये वाला है ना, इस साइड से एमिनो एसिड आएगा, ये दोनों इसको दोनों को बाइंड करेगा। सुनाई दे रहा है क्या? हाँ सर। हाँ इधर से एमिनो एसिड एंट्री करेगा, यहाँ पे पेप्टाइड पॉइंट से ये जुड़ेंगे, ये पहले बनाएगा लीनियर स्ट्रक्चर, फिर यहाँ से ये एग्जिट पॉइंट होती है, क्योंकि जो इनिशिएशन होता है ना, एयूजी कहाँ गया आपके पास? एयूजी को बोलते हैं इनिशिएशन कोडोन। ये क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस को इनिशिएट करवाता है। ऐसा नहीं कि जहां मन तहां से प्रोटीन सिंथेसिस करना शुरू कर दिया, एक उसके लिए भी स्पेसिफिक पॉइंट होता है जहां से वो प्रोटीन बनाना शुरू करेगा, और एक उसका स्पेसिफिक पॉइंट होगा जहां पर वो प्रोटीन सिंथेसिस करना रुक जाएगा, उसको बोलते हैं स्टॉप कोडोन। ठीक है, इधर से एंट्री करेगा, तो यहाँ से ये एग्जिट करके निकल जाएगा। समझे क्या? हाँ सर। हाँ सर। leads to the formation of an amino acid chain. This event is called elongation. Finally, when the UAG codon or the stop codon reaches the A site, elongation is terminated. ये इसका क्या हो गया? स्टॉप कोडोन, जो कि इसको रोक देगा। Protein synthesis. The chain of amino acid molecules is released from the ribosome. This released amino acid chain is the protein, and this part of protein synthesis is known as translation. Then the tRNA detaches from the mRNA. Ribosome detaches and dissociates into its small and large subunits.
Summary. Protein synthesis shows that the first stage involves the binding of the met tRNA to mRNA in the small subunit of the ribosome. The larger subunit of ribosome then combines with the small subunit. The second stage is the elongation stage. In this stage, the incoming amino acid tRNA fits in the A site. Then a bond is formed between the thymine and the amino acid molecule on the tRNA. The process is repeated until a chain of amino acid molecules is formed. The last stage of protein synthesis is the termination stage. When the ribosome reaches the stop codon UAG, elongation stops and the newly formed amino acid chain, which is the protein macromolecule, detaches from the ribosome. Subsequently, ribosomal subunits, along with the tRNA, dissociate from the mRNA. समझ में आ गया क्या? हेलो, ऐसे समझा थोड़ा बहुत। बात है कि मैं पुलिंग भेज दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना? हाँ, थैंक यू, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सर। Thank you. बाय थैंक सर। यू सर, बाय। Thank you, sir. Bye, sir.